and namaste. Myself, Anmol Sharma. On behalf of DITF, welcome to all of you. Today we all have joined this very useful and mindful workshop, and the experts talk on power of subconscious mind and the law of attraction. हम सभी ने ये जो दो एलिमेंट्स दो शब्द है वो काफी हम इनसे वाकिफ होंगे और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस में से भी काफी लोगों ने इसका जो मैजिक है वो महसूस किया होगा। तो मुझे यहाँ पे दो चार थिंग्स एंड थॉट्स जो रीड करने को मिले थे वो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दैट एवरीथिंग इज विद इन योर पावर एंड द पावर इज विद इन यू। सो once you realize that how powerful your thoughts are, you will never gonna think a negative thought because you're stronger than your strongest excuse. So we're gonna learn many more stuff related to this topic from our experienced speakers who are actually expert in this field. So let's begin with this. और before that मुझे मैं ब्रीफ करा देता हूँ एक इंट्रोडक्शन के साथ जो DITF का इंट्रोडक्शन है जो हम हमारा एक तरह का रिचुअल है जो हर समय हम लोग दिखाते हैं। तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। Hope the screen is visible to you. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अनमोल जरा रिकॉर्डिंग का देख लेना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से कर रहे हैं हमारे टीम में। ओके ओके फाइन फाइन ओके। So very welcome to Dadis International Trade Foundation. So ये हम लोग का एक श्लोक है जो हम लोग ने भागवत गीता से अडॉप्ट किया है। श्लोक इज आवर स्लोगन एंड दिस इज आवर सोल। So please allow me to म्यूट है, उसको कैंसिल करो ना। श्लोक बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। मैं कंटिन्यू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको कि प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्लीज म्यूट योरसेल्फ so that we can hear each other very clearly. और now it's time to introduce that. Please meet the most respected Sri Diveshji Dadi, the founder president of DITF. और हम प्यार से ये हमारे हीरो नंबर 1 है। और actually DITF, we can take DITF as a great example of these two elements which we're gonna learn today from the workshop. Is that how this living legend has been doing the lots and lots of pro bono work for the common people since day one. और last year इनको he has created one new thought to build DITF, and with the help of this power of subconscious mind and the law of attraction, he converted it
thoughts into the actions, and he collaborated with the like-minded students, kids, and all sort of personalities. And as of now, today we can see that we are all together for this wonderful knowledge sharing platform, which is all because of Jude Devji sir. So in short, yeah, Devji sir is An Ban Shan of DITF. So let me brief you the mission and the vision of DITF, जो कि सेम मिशन एंड विजन अंकल का रहा है सिंस डे वन से, और अभी इसे एक नई पहचान मिल गई है विद दिस फाउंडेशन टू कंटिन्यू द सेम फॉर द नीडफुल. Our mission is to creating a community of people who come together for a noble cause of economic development, social development, knowledge, and service. And the vision is to inspire lifelong learning, advance knowledge, strengthen our communities. And these are just a few glimpses of our previous events of 2021. In 2022, we had almost 18 to 20 webinars and workshops. Celebrations were conducted by the DITF. And if you look at the topics, you can find it that how useful these topics are for every age of person. And if I mean you that it is like whether it's on a right to information act or it's a preparing for the job interview, and especially this obesity. This obesity is silently on rise. This webinar was conducted especially in Rambagh Palace at Jaipur with other members of the Jaipur chapter. And there's one more uh, webinar which was conducted at the Radisson Blue in Mumbai. It was conducted on the cyber security webinar. This was a wonderful event conducted over here. Next comes the workshop on the stress management, a sneak peek into the data science and the artificial intelligence. And the latest one is on the understanding the succession of laws and will. The ITF has also celebrated many of the festivals, regional festivals as well as national festivals like Teej, the national festival like Women's Day, and many more. And let me tell you about the future events also. So DITF is now presenting the National Cricket League to 2021. This is going to be the cricket season actually, and first, so the semi-final and the final matches will be played at Mumbai on from December 2025. At this, you can, for more information, you can visit our website too. That is www.ditfindia.org. At the same time, you can scan this QR code mentioned in the poster to join and create your own team also. The second future events which is on the way is a present, the DITF presents the talk on roadmap to MBA entrance. It's going to be held on 25th April. The students and parents both are actually invited. Learn about how the students should create preparation plan on different MBA entrance, not only the MBA entrance but any of the competitive entrance exam. The how the student faces the challenges, how to get prepared and overcome over it. If you see the panelist speakers of our upcoming event, they are so immensely talented. They have completed all our MBA graduated and from like institute like IIM Ranchi, Jaipurian Institute, XIMB, and etc. DITF has also introduced the e-bulletin from 2021. DITF bulletin is being led by Dr. Taruna Dadit and our founder president as well. Taruna Dadit is the writer and has written several books and winner of several state awards. She is an chief editor of the ITF e-bulletin as well.
So this is the first edition of DITF Bulletin being blessed by the Acharya Pandit Goswami Ji at Ram Bhumi, Ayodhya. Since the bulletin has been started from January 2021, we have printed released four e-bulletins. You can also download these bulletins from our website. Now the DITF Learning Center. Yeah, it's an initiative and where we can hold the counseling sessions, workshops, etc. by the experts from in different fields. The objective of this DITF Learning Center is to groom, train, enhance skills, assets, and provide practical working knowledge and related aspects of various tools, technology, process, and methods in use. We get an immensely talented team of 7 personalities, which consists of Divejji Dadit, Sushil Ji Dadit, Kuldeep Ji Dadit, Arushi Ji Sharma, Naman Ji Dadit, Harshit Ji Dadit, and Jay Ashoka. In case any of our Dadit Bandhus has needs any sort of guidance, they can contact any of our team members. Oh. Let me tell you about our today's workshop. It's on the law of attraction. We got the panelist speaker, the CA Rashmi Daima, moderator, advocate Neha Ji, and the vote of thanks will be expressed by the CA student, Ms. Ankita Ji Kudar. Last but not the least, thank you so much for listening us. And at the same time, you can reach us on multiple media platforms which are mentioned with their respective user IDs, like Instagram, Gmail, Facebook, YouTube, link. Our every webinars and workshops have been recorded and been uploaded on various media platforms. So in case any of have missed our webinars, they can watch it on our these platforms. So I'm just stopping the screen sharing of right now. And all right, now allow me to introduce our moderator, Ms. Neha Ji Dadit. She is an economics honor graduate and currently pursuing LLB from Jodhpur. Apart from academics, Neha is also interested in photography, hosting, event organizing, writing, and is a part-time freelance content writer too. In short, she is extremely talented, just like our audience and other team members. Now, I would like Ms. Neha Ji to take our today's program forward. Thank you. Thank you so much. Over to you, ma'am. A very good evening, everyone. I hope my voice is audible. Yep, absolutely Yes. audible. Okay, great. So let's continue with today's topic, which is the law of attraction and power of subconscious mind. So Ms. Rashmi, who is a CA by profession, she is working as a finance manager with Sequoia Capital, holding an experience of 7 years in the field. Apart from being a CA, Rashmi holds various certificates in law of attraction and power of subconscious mind. She also holds a grandmaster's degree in Reiki. So Rashmi, let's get towards what is law of attraction, and please tell us more about it according to your knowledge. Hi everyone, good evening. First of all, I would like to thank you DITF for giving me this platform. Thank you DITF, and I welcome all of you on behalf of DITF. Next, I'm grateful to our audience. तो DITF आज जहाँ पे भी है and हम जो आज इस वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सब I think you are mute. Hi everyone. Yes. Yeah, audible. Audible now? Yeah. Yeah, you're audible now. So, not sure whether you all heard me before or not. Yeah, we have heard you. Okay, thank you. So next, my gratitude to my lovely team, Ms. Neha, Ms. Arushi, Ms. Ankita, Master Anmol, and our own technical team, and the most amazing young, handsome,
cool person who is behind the foundation of DITF, our own Mr. Devesh Dadij. So now let's start today's webinar with the basic understanding of law of attraction. So now, Neha, can you please move the slide? Thank you. So now, before the very first one, Neha, can you, thank you. Yeah. So now, before like getting into the definition of what is law of attraction, I would like to share a few stories of these people you can see on the screen. So they have actually applied the law of attraction in their personal life, and we all know where they are today. So first of all, I would like to take the example of Captain Cool. So we all know him. So he went to a fair with his parents, and like as we all know कि जब भी हम मेले में जाते हैं हम लोग कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं, तो other kids bought toys, chocolates and other stuff, but he bought Sachin's poster, and after once he bought that, he put it on the wall of in his room, and after a few years actually it became the reality. So he became the captain of Team India and won the World Cup, and at the same time he has also completed the dream of Sachin. So the same, like the entire process we can see in the movie Sachin. So how he has applied the law of attraction in his life, and just because by putting the photographs on his wall, he keep on thinking that what is law of attraction, like how he keep on thinking that one day I would be I would be at that level, and it actually happened in his life. So now moving to the next one. Mr. Modi, उनको सभी को जानते हैं. So he thought it first. जब सबसे पहले opposition party was very strong in India. So at that time, Mr. Modi thought कि उस टाइम पे मतलब मोदी की जो पार्टी थी उसका कोई भी नामो निशान नहीं था. At that time, he has given a vision कि एक दिन मेरी पार्टी इंडिया को लीड करेगी. And जो मोदी की स्लोगन थे वो ये थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी. And the next slogan is अब की बार मोदी सरकार. So he did affirmation one by one, like एक और दूसरे हर slogan में he did affirmation manifest किया उन्होंने, and we all know the reality. Now moving to Mr. Ranveer Singh. So like जो law of attraction का सिद्धांत है वो हर तरीके में हर जगह पे काम करता है, whether it is politics, your life, dream, job, office, company, your life partner, relationship, everywhere it works. So now I'll talk about Ranveer Singh. तो जब रणवीर सिंह 23 साल के थे तो उनकी बर्थडे पे उनकी बहन ने केक के ऊपर एक फोटो लगाया था DDLJ का, और जो रणवीर सिंह का फेस था शाहरुख खान के फेस की जगह उन्होंने रणवीर सिंह के फेस को लगा दिया. सो आफ्टर दैट like he took the picture और उन्होंने उसको फ्रेम करवा के अपने रूम में रख लिया, और उसके नीचे लिखा था यशराज फिल्म प्रोडक्शन. So after few years, he actually debuted in Hindi cinema with यशराज प्रोडक्शन का फिल्म के साथ में. So now we all know कि जितना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं उतनी ही रिजल्ट हमें दिखते जाते हैं. I will again share one another story. I hope you guys are enjoying the stories. So the next person we all know, businessman, इंडिया के businessman है धीरू भाई अंबानी. तो जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो he used to work in a petrol pump. तो अभी हम एक बात करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बड़ा आदमी बनना है तो मेरे पास में पैसे होने चाहिए या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, बट एक्चुअली ही नेवर हैड एनी ऑफ देम. तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, उनको कोई हायर एजुकेशन नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उनकी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं थी कि हाँ तुम ये करो और तुम जो सोच रहे हो वो तुम कर सकते हो. उनकी फैमिली ने भी उनको यही बोला था कि like it is like his family said कि तुमको जो भी करना है अलग रह के करो, we are not with you. But he only had one thing in his mind, that is vision. He had a vision कि मुझे एक दिन इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन बनना है. And we all know the history, and the result is Reliance. So these are the example of law of attraction. So Rashmi, could you please tell us what is law of attraction and the basic understanding of it?
Yes, Neha. So now these are the example of law of attraction. So now we will move to the definition. What is the definition? Neha, please, next slide. Before that, I hope the screen is visible. yes, yes. Yeah. So now what is the basic of law of attraction? कि like attracts likes and present is always perfect. So law of attraction का जो सिद्धांत है वो हमेशा पॉजिटिविटी पे काम करता है और वो लाइक इट नेवर टॉक अबाउट प्रेजेंट, इट नेवर टॉक अबाउट द पास्ट और फ्यूचर, इट ओनली टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट. सो नाउ हम जो भी सोचते हैं और जैसा भी सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता जाता है. इफ विल थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव विल हैपन. इफ विल थिंक नेगेटिव, नेगेटिव विल हैपन. So this is the way law of attraction work. So it is based on the belief that thoughts are a form of energy and that positive energy attracts success in all areas of life, including health, finance and relationship. तो हमने सुना है कि energy neither be created nor destroyed. Everything you ever wanted is already there. So we are surrounded by the energy and it is simply a matter of choosing the thoughts which we actually want to happen with us. So यूनिवर्स के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की एनर्जीज है और एनर्जी हमारे आसपास में है और जो भी हम यूनिवर्स को देंगे, जो भी थॉट प्रोसेस, जो भी हम अपने विचार यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स उन्हीं को रोटेट करेगा और वापस हम लोगों को आंसर करेगा. यूनिवर्स विल आंसर टू आवर थॉट्स. तो हमेशा लाइक इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ पॉजिटिव थॉट्स. So now moving to the next slide, that what they say, what like philosopher or author or mentor or public speaker, what they think about the law of attraction. So the Bob Proctor, so he is like philosopher, author and personal coach. So he says the secrets give you anything you want: happiness, health and wealth. We can achieve anything in our life what we want to achieve. Like it is like if we'll read the John Ashraf's definition, he says we can have whatever it is that we choose. I don't care how big it is. So हम लोग कई बार जो लाइफ के अंदर जब भी सपने देखते हैं या फिर हम बच्चे होते हैं तो हम लोगों को जनरली सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट लाइक लिसन टू दैट. इट सेज कि जितने आप अपने जब तक सोचोगे नहीं तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये नहीं मानता है कि कोई चीज छोटी है, बड़ी है या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. इट हेल्प्स अस टू अचीव दैट, बट उसके लिए कुछ जो प्रोसेसेस है वो हमें फॉलो करनी होती है और कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. तो हम अभी उनके ऊपर बात करेंगे. सो नेहा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. So these are the basics of law of attraction. So the very first one, the great secret of life is law of attraction. तो मैं इसके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड और बेसिक सा एग्जांपल लेना चाहूंगी कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि वो इस सिद्धांत को हमेशा से ही जानते थे. इवन हमारे पेरेंट्स जो इस जनरेशन में है वो भी इसको फॉलो करते हैं. लाइक जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो हमारे लिए एफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स में छोड़ते हैं, जैसे कि खुश रहो, तुमको जॉब मिल जाए, तुम्हारा बिजनेस बढ़े, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी उम्र लंबी हो. सो दीज आर द लाइक द सीक्रेट इन द वर्ल्ड, लाइक जो ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और सारे के सारे सिद्धांत इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पे ही काम करते हैं. Now next is the law of attraction says like attracts like. So even you think a thought, you are also attracting like thoughts to you. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उनके अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं. सो हमारे थॉट्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो पॉजिटिव थॉट्स की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, नेगेटिव थॉट्स की अलग फ्रीक्वेंसी होती है. तो पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी इज much higher than the negative thoughts. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव थॉट्स है वो यूनिवर्स के अंदर ज्यादा जल्दी से और ज्यादा तेजी से फैलते हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स. एंड इट इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट फॉर इट, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स यदि ज्यादा जल्दी फैल रहे होते तो आज की जनरेशन में हमारी रिसर्च कहता है कि 70 to 80 लाइक इवन लाइक
70 to 80 data as long back. Right now 90 to 95% people think negative. कोई भी सिचुएशन हो रहा होता है तो हम हमेशा उसको नेगेटिव वे में ही सोचते हैं, हम उसको पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते हैं. So in this point I would like to discuss कि हर थॉट का मैग्नेटिक पावर होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट्स के बेसिस पे ही काम करता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट हियर दैट यू डू नॉट वांट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड व्हिच आई वुड लाइक एवरीवन टू फॉलो इन देयर लाइफ if you follow the law of attraction. So law of attraction doesn't hear that you do not want it. It manifests the things that you are thinking of, and so it is going to show up over and over again. Law of attraction is not biased to wants or do not wants. So like if I'll say कि how it reads the sentence, जब भी हम कोई भी विचार बोलते हैं तो वो यूनिवर्स उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है. इफ आई से कि मुझे ऑफिस लेट नहीं होना है और आज मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है. सो व्हाट हाउ इट रीड्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उसको किस तरीके से पढ़ता है कि मुझे लेट होना है और वो एक्चुअल में हो जाता है. हम लोग कई बार सोचते हैं कि जैसे कि बारिश में का बुखार होगा. कुछ लोगों का कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ में शुरू से ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर वो बीमार हो जाते हैं. तो अभी वो एकदम भले चंगे हैं, जैसे ही एग्जाम आएगा तो वेरी फर्स्ट डे से अच्छा मैं तो बीमार हो जाता हूँ. एक दिन भले ही वो बीमार नहीं होगा बट नेक्स्ट डे वो बीमार हो जाएगा. सो व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग, दे आर गिविंग द थॉट्स और वाइब्रेशंस टू द यूनिवर्स. और जो भी सिमिलर टाइप के वाइब्रेशन हमारे पास में सब तरह की एनर्जी है, तो जो वाइब्रेशंस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, तो जो वाइब्रेशन उस नेगेटिव वाइब्रेशन से मैच करेंगे इट विल एक्चुअली हैपन. तो हम अपना जो भी चीजें हम चाहते हैं वो हम अभी अपना क्रिएट कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ मैं बोलूंगी कि हमें अपने थॉट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई या रिप्लेस कर देना चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन से. सो जैसे कि इफ आई एम राइटिंग कि मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है, आई वुड से आई एम ऑन टाइम टुडे. बारिश में भीग गया, बुखार होगा, हम ऐसे बोलेंगे कि मुझे बारिश में मजा आ रहा है and it will make me happier and healthy. Exam मतलब if we will talk about the exam, तो मैं ऐसे बोलूंगी मैं एग्जाम के अंदर आई एम हेल्दी. सो एग्जाम में मैं एकदम अच्छे से पेपर लिख के आती हूँ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ. सो दैट इज हाउ वी शुड राइट द सेंटेंस. तो जितने पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि जैसे ही वो वर्ड के अंदर नो आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको इम्प्लीमेंट कर देता है. और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि आई डू नॉट वांट दैट पर्सन टू डू टू मी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको कैसे पड़ेगा, आई वांट दैट पर्सन एंड मोर पीपल टू डू टू मी. तो उस तरीके से वैसा ही होने लग जाता है. So this is like I'm like actually emphasizing on this point कि जब भी हम कोई भी वाइब्रेशंस यूनिवर्स को दे तो हमें पॉजिटिवली बोलना चाहिए. और हमने अपने बड़ों से ये सुना भी है कि जब भी हम लोग मतलब वो बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा बोलो, लाइक नेगेटिव मत बोलो. तो ये हमारे पूर्वज जानते थे और वो सीक्रेट हम लोग भूल चुके हैं. लाइक बिकॉज वी थिंक कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हमको सब पता है एंड वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एंड वी कैन प्रिडिक्ट. और देखो मैंने सोचा था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी एंड एक्चुअली इट हैपेंड. या सो देन शाह जयप्रकाश जी, आई विल लाइक मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगी. सो सॉरी आई फॉरगॉट वेयर आई वाज. तो हमारे पूर्वज जो शुरू से जानते थे, तो हमारे फैमिली हमें हमेशा बोलती है कि पॉजिटिव ही रहें और पॉजिटिव ही सोचें, तो वही वाइब्रेशंस हमारे साथ में आते जाते हैं. योर करंट थॉट्स आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर लाइफ. तो इसमें हम बोलेंगे कि जो भी हम सोचते हैं वो रियलिटी में हमारे लाइफ में हो रहा होता है, हम उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे होते हैं. तो जब तक कोई आदमी मतलब सोचेगा नहीं, कोई विचार नहीं आएगा. जैसे आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ साइंटिस्ट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टोरी एकदम स्ट्रगल से भरी हुई है, बट उन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकल के उन्होंने अपने आप को एक अलग सोच दी और उस सोच के बेसिस पे वो आगे बढ़े हैं. सो नाउ इट इज नेक्स्ट इज इट इज इम्पॉसिबल टू फील बैड एंड एट द सेम टाइम हैव गुड थॉट्स. तो हम लोग क्या करते हैं कि
कई बार हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को जब लागू करते हैं अपने जीवन में, तो हम बोलते हैं हाँ मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, कि हाँ सबके सामने तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है मेरा ये काम हो गया, या मुझे अच्छी जॉब मिल गई, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में बैक ऑफ माइंड हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते उस प्रोसेस पे। तो जब तक और हमारे दिमाग में ये लाइक थॉट रहता है कि ये तो शायद ही होगा, when this thought comes then this principle doesn't work। तो बेसिकली बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं समराइज करूं तो एक ही चीज है कि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लाइफ में हर चीजों के पीछे का सिद्धांत है, और इसको हमें यदि इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पॉजिटिव थॉट्स ही एनवायरनमेंट और यूनिवर्स को देने होंगे, और सेम टाइप के थॉट्स हमारे पास में आएंगे। सो आई विल जस्ट टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो व्हेन DITF हैज स्टार्टेड, तो DITF के अंदर बहुत कम लोग थे जो स्टार्टिंग में हमारे साथ में थे, बट वी कीप ऑन लाइक सेंडिंग द थॉट्स टू द यूनिवर्स कि हमारी DITF की फैमिली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एंड टुडे इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ DITF कि हमारे पास में 70 एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वी हैव अ फैमिली, लाइक बहुत बड़ी फैमिली है हमारी DITF की, और बहुत सारे व्यूज है हमारे वीडियोस पे, बहुत सारे लोग हमारे कनेक्शन में है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन पीपल आर टेकिंग आउट द टाइम एंड सिटिंग टुगेदर एंड लिसनिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट हैपन ओवरनाइट। नेहा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah. So now the next question, like. So my next question is, how can we use it in our day-to-day life, and how this exactly works, or what is the process of law of attraction? Yeah. So like we all must have heard this. Like you can see on the screen, Aladdin और उसका जिन और जिन की कहानी। So लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है कि वी आर ओन क्रिएटर, लाइक वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो हाउ इट वर्क्स, सो इफ यू थिंक अबाउट Aladdin and his lamp, Aladdin picks it up and dusts it off and out pops the jinn. So jinn always says one thing, your wish is my command. तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए जिन ही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वो सब चीजें करता है जो अलादीन के लिए जिन करता था। तो हमारी लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल है वाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ नेचर। इट इज इम्पार्शियल, इम्पर्सनल, एज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट इज प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी प्रोसेस क्या है। सो नेहा, नेक्स्ट स्लाइड। या सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक हमने ये सब चीजें जानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या कहता है, ये बेसिकली है क्या, कौन से लोगों ने इन्होंने अपनी लाइफ में लिया है, और नाउ लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसकी प्रोसेस, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप्स है, एंड दीज स्टेप्स आर एक्सट्रीमली सिंपल, लाइक, और हम इसको एक्चुअल में अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते आए हैं। So the very first step is ask. So make a command to universe. Universe को आप एक ऑर्डर दीजिए, कमांड दीजिए, जैसे कि अलादीन ने अपने जिन को एक कमांड दिया कि मेरा ये काम करो। So the same way we can also give the command to universe and let the universe know what we actually want, and universe will respond to our thoughts. तो एक सिंपल पेपर लेना है, उस पर हमें लिखना है कि हमें क्या चाहिए। So we can start, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को नौकरी चाहिए, और तो वो इस तरीके से लिख सकता है कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ जॉब व्हिच पेज मी USD 5,000 एवरी मंथ। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग टू द यूनिवर्स कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा तब तक हम उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट वी शुड नो कि हमें चाहिए क्या, और हमें वही चीज यूनिवर्स से पूछनी है। सो द सेकंड स्टेप इज बिलीव। Think, speak and act as if you are already receiving what you want. Have complete faith and don't worry how it will happen. हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, हमारे पास तो बैकग्राउंड ही नहीं है, और मतलब it is rare to happen, और हर किसी के साथ में ये नहीं होता है। So don't think about that. हमें ये सोचना है कि मुझे ये चीज चाहिए,
और मैं उसके लिए एफर्ट्स लगाऊंगी और ये होगा ही, मेरे लिए तो ये होगा ही, इसको होना ही पड़ेगा. सो दैट इज हाउ द सेकेंड स्टेप इज बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव दैट. बिलीव इन द अनसीन, जो हमने नहीं देखा उस चीज पे हमें बिलीव करना पड़ेगा कि वो चीज मुझे मिल गई है. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी विल अगेन कनेक्ट विद द वेरी फर्स्ट वन कि मैंने यूनिवर्स से कहा कि मुझे $5,000 की पर मंथ की जॉब चाहिए. तो अब मुझे उसको ऐसे बिलीव करना है कि वो जॉब मुझे मिल गई है. थर्ड वन इज रिसीव. सो फर्स्ट इज आस्क, देन बिलीव, ट्रस्ट एंड थर्ड इज रिसीव. तो हमें उस तरीके से फील करना है कि हमारे पास में वो चीज ऑलरेडी आ गई है. तो हमें उस तरीके से विजुअलाइज करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में कि मुझे $5,000 पर मंथ की जॉब मिल गई है और मतलब मैं ऑफिस के कैबिन में हूँ, लोग आ रहे हैं, मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ लोगों को, और मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है और उस सैलरी से मैंने क्या क्या चीजें खरीदी है. सो दैट्स हाउ वी शुड मैनिफेस्ट और विजुअलाइज. तो हमें इस तरीके से फील करना है कि ऑलरेडी मेरे जेब में उतने रुपए हैं. So when this is a very simple process, कोई लॉ, इसके अंदर कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है. वेरी सिंपल थिंग कि जो भी चीज चाहिए यूनिवर्स को बोलो, उस पर ट्रस्ट करो कि ये मुझे आएगा, एंड देन फील लाइक यू ऑलरेडी हैव दैट एंड दिस विल वर्क फॉर यू. सो जस्ट टू लाइक फॉर दिस टू लाइक आई विल शेयर वन एग्जांपल विथ यू कि हाउ दिस प्रोसेस in one of my family member actually followed that, and you will be very surprised listening this story. So this is the story of my badi mummy. So it was almost 15-20 years back. So basically I belong from a very small town of Rajasthan. So in my village girls used to study till matrix, hardly secondary ho jata tha ya rarely college hota tha. And it is not only for the girls, like ladke bhi hamare gaon mein 10वीं 12वीं या फिर college padhte थे hardly. So the story, like what my badi mummy did, so this story started with my cousin. तो बड़े पापा बोलते थे कि लड़का है, ब्राह्मण है, 2-5 साल इसको संस्कृत में पढ़ाओ और पंडित जी बना दो, तो अपना और अपनी फैमिली का गुजारा तो वो कर ही लेगा. बट मेरी बड़ी मम्मी को हमेशा से ये था कि मतलब वट एवर दे हैव सीन, दे डू नॉट, शी नेवर वांटेड कि उनके बच्चे भी वही चीज देखें. तो उन्होंने कहा कि भाई सारे बच्चों को घर से निकालना है और इस जो हमारी जनरेशन है उनको बाहर निकालना है. सो व्हाट शी डिड, शी आस्क्ड टू द यूनिवर्स, कि उन्होंने यूनिवर्स को बोला कि हमारे जो बच्चे हैं घर के, उनको हमें पढ़ाना है और इस जनरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना है. और हम सो दैट्स हाउ शी आस्क्ड टू द यूनिवर्स. आफ्टर दैट वी ऑल स्टार्टेड बिलीविंग. वो एक उनका थॉट प्रोसेस था. हम लोग घर में 7 भाई बहन है, बड़ी मम्मी और हम लोग, लेकिन हम सब ने मतलब वी नेवर हैड अ थॉट कि शायद हम लोग कभी पढ़ाई करेंगे. लेकिन बड़ी मम्मी ने सोचा कि इट इज लाइक शी आस्क्ड कि हाँ इट इज पॉसिबल. शी आस्क्ड टू द यूनिवर्स एंड देन वी स्टार्टेड बिलीविंग ऑन दैट एंड देन इट एक्चुअली हैपेंड. सो हाउ इट हैपेंड, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि सीए कोई खेल है क्या, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, यू बिलोंग फ्रॉम अ फार्मर फैमिली and housewife who, it is not possible. But she believed that it will happen one day. And I'll again give up one example. Like when I used to stay in my village, तो तब ये thought process था कि सीए जो है मतलब हम कभी हॉस्टल में जाएंगे, पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वुमन बनना है मुझे या इंडिपेंडेंट गर्ल बनना है, आई वांट टू ट्रैवल अब्रॉड. तो ये सारी चीजें थी, बट एक विजन था, मतलब सोच थी कि मुझे ये करना है. एंड देन द रिजल्ट ऑफ जो मेरी ताई जी ने जो चीज सोची, उसका रिजल्ट ये हुआ कि माय ब्रदर हिट द जैकपॉट. So he is right now, he is a CA settled in Dubai doing a job, and he is also involved in the social and professional activities, and he is the treasury head of ICAI Dubai chapter. And we followed the same thing. हम लोग जो भी भाई बहन हैं, हम लोग CA हैं, and we are doing well. So this is not just कि I'm like, this is a practical example which I actually seen. So this process is extreme powerful. So we should do ask, believe and receive. तो सबसे पहले अपने आप को थॉट दो, like today, like चाहे कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो. So if you are a student, आपको साइंटिस्ट बनना है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि सीए बना दो, इसको डॉक्टर बना दो, टीचर बना दो, एमबीए पढ़ा दो. सो वी हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज. अभी किसी को डांसर बनना है तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं. साइंटिस्ट बनना है तो बोलेंगे अरे तुम गांव में हो, तुमको कहाँ से साइंस आएगा.
बट इफ एनीबडी wants to achieve anything, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब हो, कुछ लोग हैं 40-50 की एज में होते हैं और वो सोचते हैं कि अभी तो मेरा हो गया है, अभी नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट राइट नाउ. किसी को भी कोई भी एज नहीं होती है, कोई भी लाइक देयर इज नो बाउंडेशन. हम जो भी करते हैं विद दिस प्रोसेस वी कैन आस्क टू द यूनिवर्स कि मुझे क्या करना है. मुझे पहले यूनिवर्स को पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर उसको बिलीव कीजिए कि मुझे ये मिल गया है, एंड देन उसको रिसीव कीजिए. सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच वी शुड implement in our life. I hope you guys are like getting me, and we are on the same page. You are understanding. If Yeah, no issue, don't worry. Definitely, Rashmi. Ask, believe, and receive, 3 most important things if you want to achieve something. You're absolutely right. So moving on to our next question, what are the techniques of law of attraction? Yes, so there are lots of techniques for the law of attraction. The very first one is visualization. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, we should do the visualization. उसको सोचना स्टार्ट कर दीजिए, उसे डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दीजिए. तो इसके लिए फॉर एग्जांपल इफ आई विल से कि ठीक है, इफ समबडी विल से ओके मुझे घर लेना है, आई वॉन्ट अ ड्रीम होम, तो आप सोचना शुरू कीजिए कि आपको कौन से शहर में घर लेना है. आपको 2 BHK होगा, 3 BHK होगा, कौन सा नॉर्थ ईस्ट कौन सा फेसिंग आपका हाउस होगा, कितने कमरे होंगे, और आपका डिजाइन कैसा होगा, बेडरूम का डिजाइन कैसा होगा. तो उस तरीके से आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए. राइट नाउ आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं हो घर बनाने का, फिर भी आप गूगल पे जाइए, आप फोटोज देखिए, उसकी अच्छे अच्छे घरों की फोटोज देखिए, और one day it will happen. So visualization is the most powerful technique to implement the law of attraction. So now moving to the dream chart. So dream chart is again a superb process. तो ड्रीम चार्ट में हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर लेते हैं और उस पेपर पे जो भी हम सोचते हैं, अपनी ड्रीम कार, ड्रीम होम, जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ज्वेलरी, जो भी हमारे सपने हैं, हम उन सपनों को उस पर पेस्ट कर सकते हैं चार्ट पे, और उसको अपने सामने लगा दीजिए कमरे में. और जैसे ही सुबह हम उठते हैं, रात को सोते हैं, तो उस ड्रीम चार्ट को देखिए और यूनिवर्स को सिग्नल भेजिए कि आई एम एक्चुअली लाइक आई वांट दिस एंड इट इज हैपनिंग, और उसको विजुअलाइज कीजिए कि मुझे ये मिल गया है, एंड दैट इज हाउ दिस विल कम इन द एग्जिस्टेंस. सो अगेन ड्रीम चार्ट, लाइक मैं आपके साथ में एक एग्जांपल शेयर करूंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्पैक्टेड माय लाइफ अ लॉट. मतलब मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सीखा था, वो सीखा था when I was in class 10, और from that day till today, like this I'm doing the practice of law of attraction. So dream chart. So जब मैं like when I was studying for my CA, उस टाइम पे कोई मेरे पास में डिग्री नहीं था, तो एक मैगजीन के अंदर एक पेपर आया जिसमें 50 कंट्रीज के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस थे, कि जैसे इंडिया में ताजमहल हो गया, स्वीडन में ये कुछ और चीजें हो गई. तो उस तरीके से वहां पे मोस्ट विजिटेड प्लेसेस का एक पेपर था. आई टुक इट आउट एंड अपनी वॉल पे लगा दिया. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि नेक्स्ट 5 years में मुझे एटलीस्ट 10 कंट्रीज में विजिट करना है. फिर उसके बाद में आई स्टार्टेड माय करियर, आई वेंट टू बैंगलोर एंड सब चीजें शुरू हो गई. सो लाइक जस्ट 5-10 दिन पहले मैं अपने पेपर्स देख रही थी, उसमें से मैंने देखा और वो पेपर निकाला, आई टिक्ड 11 कंट्रीज. सो दैट इज, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि अभी मैंने देखा, उसको मैनिफेस्ट किया और मैंने कहा कि 5 साल. सो मेरा मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे इतना स्ट्रांग था कि आफ्टर लाइक आई रियलाइज्ड इट लेटर, बट इट हैपेंस. कई बार मैंने अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स में या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में ये देखा कि उन्होंने लिखा कि मुझे अपनी मेरी ड्रीम कार है वो BMW है और मुझे वो चाहिए. तब लोग हंसते थे उस पर, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स दे एक्चुअली वेंट. तब तक जैसे कि अभी मुझे लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से टुडे कि अभी मुझे BMW चाहिए, 5 साल बाद में हो सकता है मुझे कोई दूसरी कार, दूसरा मॉडल चाहिएगा. तो कुछ लोग, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने सबसे पहले वो गए और उन्होंने BMW कार लिखा था और वो गए थे ऑडी खरीदने के लिए. एंड दैट डे ऑडी वाज नॉट अवेलेबल ऑन द स्टोर एंड ही सेड कि वही ऑस्पिशियस डे है उनकी तरफ से, तो उन्होंने अपनी मम्मी को वो गाड़ी गिफ्ट की और उन्होंने BMW ही खरीदा, द सेम कलर जो उन्होंने अपने ड्रीम चार्ट में लगाया था. सो दिस
दिस लाइक ड्रीम चार्ट और विजुअलाइजेशन और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमें हर चीज दे सकता है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। सिर्फ जरूरत है तो वो यूनिवर्स को पूछने की, मैनिफेस्ट करने की, अफर्मेशन करने की। और अफर्मेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए और अफर्मेशन शुड बी लिटिल बिट शॉर्ट। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अफर्मेशन हमेशा शॉर्ट, क्रिस्प, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए ताकि हम उसको बार बार दोहरा सके, बार बार देख सके, हमारा थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को आईएएस बनना है तो उसको ये लिखना, मतलब इफ से कि मुझे आईएएस बनना है, तो दैट उसकी वजह, मतलब आईएएस इज नॉट सफिशिएंट। उसको ये चीज लिखनी चाहिए कि मैं आईएएस बन चुका हूँ मई 2021 में। So that is how what he is doing, he is giving the time, he is giving what he wants, and वो हो चुका है। So that is how he should do the affirmation. Next, जो next technique is gratitude. So we should be grateful to each and everything what we have. So हम जैसे ही सुबह उठते हैं हमें grateful feel होना चाहिए, हमें gratitude रखना चाहिए कि today I am alive, I am happy, I am healthy, I am wealthy, I have a very good job, I am thankful to the universe कि मेरे पास में आज जॉब है। I am thankful to the universe that my parents are with me. I am thankful to the universe that I have a very good family. I am thankful to the universe that my boss is very good. Like even though your boss is not good, but still you should manifest, because आप ये बोलेंगे कि मेरा बॉस बुरा है तो वो चीजें और होती जाएगी, and that is how it will again, like universe will listen to it and it will respond back to you. So better, और कई बार होता है कि जैसे कि मेरे पास में अभी जॉब है और मुझे और भी उससे अच्छी जॉब करनी है, तो I would say I am very grateful to the universe that I have a job. I have a job, and I'm very extremely grateful to the universe that I'm getting the job where I'm getting which pays me $50,000 every month. So that is how we can think about it, and we can, like, because these all the techniques are interrelated. We can use anything. We can write it down on the plain paper, we can fix it on the wall, we can write it in like on a hand also ki like I have cleared this exam, yeah, I got the job, or anything, like whatever our wish is there, we can write it down, we can see, we can put the focus that what we actually want in our life. Now next 333 and 555 techniques. So these are the techniques where जो भी हमारी wish है, for example if I'll say कि मुझे IAS बनना है next exam में, या मेरा कोई interview मुझे मालूम है कि मेरा interview है कोई particular date को, तो I will write it down कि on 30th April 2020 को I cleared the interview and got the job. So that is how I should write it down 33 times on मतलब मुझे अपनी जो विशेष है वो एक पेज पे 33 टाइम्स लिखनी है और 3 दिन के लिए लिखनी है। So the next technique is 5 multiply 55. तो मुझे अपनी विश को 55 टाइम्स लिखना और 5 दिन तक लिखना है। So that is how like any of the method we can follow. और techniques of law of attraction के लिए एक जो सीक्रेट है, बेसिकली द सीक्रेट इज रिटन बाय अ पर्सन एंड उनकी बहुत सारी बुक है और उनमें से एक बुक है मैजिक। तो उसके अंदर बहुत सारी 28 डेज की प्रैक्टिस दी हुई है। सो लाइक आई विल आल्सो शेयर द लिंक्स विथ यू, तो आप उसकी ऑडियो को जाके सुन सकते हैं, which is available on YouTube. So these are the techniques which we can use in our life to implement the law of attraction. Yes. So I believe you, Rashmi, completely. जैसे हमारे बड़े लोग हमें कहते थे कि तुम्हारी जो भी विशेष हो तुम पेपर पर लिख के रखो, उसको पेपर को रोज देखो, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो. So that's absolutely right. So moving on to our next question, what are the areas where it can be used by a layman? एक normal इंसान से आप एक normal इंसान कैसे use कर सकता है इस law of attraction को? Yes. So Neha, it can be used anywhere. Like आप अपने relationship को अच्छा करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं, उसको heights पे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए आप use कर सकते हैं ड्रीम होम, ड्रीम का, गुड रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर्स, और कोई बड़ी कंपनी में जॉब पाना है,
कोई इवेंट अटेंड करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, सो इट कैन बी यूज्ड anywhere, everywhere and by anyone. There is no specification, gender differentiation कि कौन इसको यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है. It is like free for all the, available for all the people. Yeah. Okay. So how long does it take to manifest something? Yeah, very interesting question. So that again all depends on how many times you are asking and how specific you are about and what time frames you actually request to the universe that it will happen. So for example, कोई छोटी सी चीज चाहिए, जैसे कि I'll take an example कि yesterday I manifested कि हमारा जो audience है वो 50+ होना चाहिए. So it happens in a day. And if like I'll talk about कि कुछ बड़ा wish होता है, तो it may take 6 months or like a year, and again it depends on how you are manifesting it. So उस चीज पे डिपेंड करता है. तो जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि like we should use the SMART technique. So I will explain the SMART technique to you now, but before that there is one additional thing which is very important कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम इमीडिएट नहीं होता है. इमीडिएट होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे कि ह्यूमन माइंड्स में इतने सारे थॉट्स होते हैं जो एवरी टाइम मूवमेंट करते रहते हैं. कोई पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं. हम गुस्से में बोलते हैं कि मेरा वो तो मन कर रहा है कि मेरा मोबाइल टूट जाए. तो यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमीडिएट काम कर रहा होता तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता. कोई बोलता है कि मुझे मेरा मन करता है मैं तो हिमालय पे चला जाऊं, और वो पता चले कि हम तुरंत हिमालय पे पहुंच गए. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना जल्दी भी काम नहीं करता है, एंड इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग टू द लाइक ब्लेसिंग टू द पीपल. और तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम इमीडिएट काम नहीं करता है, बट उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए देयर आर फ्यू लाइक मेथड, मतलब देयर इज अ वे किस तरीके से हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा जल्दी काम करवा सकते हैं. सो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक. द स्मार्ट SMART. So S means we should be very specific कि हमें क्या चाहिए. हमें कोई कार चाहिए तो कौन से कलर की कार चाहिए, कौन सा साइज, मतलब कितना सीटर कार होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए. We should be very specific about that. Next is M. It should be measurable. अभी मैं बोलती हूँ कि अच्छा मुझे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बिजनेस में यूनिवर्स मुझे बिजनेस में प्रॉफिट दे रहा है. सो प्रॉफिट कैन बी लाइक एक आदमी के लिए 5,000 रुपए पर मंथ भी प्रॉफिट हो सकता है, और एक आदमी के लिए 50 लाख रुपए भी प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है. सो इट डिपेंड अगेन पर्सन टू पर्सन. तो इसके लिए हमें यूनिवर्स को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा, मतलब व्हाट आई वांट. इट शुड बी मेजरेबल कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट चाहिए पर मंथ, मुझे 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए या 5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए. So now next is it should be accurate कि जो चीज चाहिए वो स्पेसिफिकली हमको बोलना पड़ेगा यूनिवर्स को what I want. The next one R stands for the realistic. तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ फ्रेशर और मैं बोलती हूँ कि मुझे अभी बैंगलोर में जाके 2 करोड़ का घर खरीदना है. So it doesn't happen overnight. Instead of saying कि मुझे अभी 2 करोड़ का घर अभी तुरंत चाहिए, तो ये उतना रियलिस्टिक नहीं है. अभी कोई बोलेगा मुझे चांद के ऊपर जमीन खरीदनी है, कोई बोलेगा अच्छा मुझे मेरा फियांसी है वो चांद लाके देगा. सो इट एक्चुअली डजंट हैपन. तो इट शुड बी रियलिस्टिक. तो जो वास्तविकता में जो चीजें हो सकती है वैसा ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मानना है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे अभी मुंबई में मेरा खुद का घर है, आई कैन से कि 2025 बैंगलोर तक, यू कैन गिव अ स्पेसिफिक डेट कि मुझे 2025 तक मेरा इस तरीके का घर बैंगलोर में चाहिए, या वट एवर प्लेसेस यू वांट, वी वांट दिस थिंग. नेक्स्ट इज टाइम बाउंड. सो हर जगह पे मतलब हम लोग जब भी यूनिवर्स को पूछते तो हैं कि मैंने ये IPS का एग्जाम क्लियर कर लिया, मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर मुझे जॉब चाहिए. वी विश, ऑल द पीपल विश, हम लोग सब विश करते हैं, हम सोचते हैं. तो किसी की तो सोचने पे पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती है. सो हमें विश जब भी करें तो हमें वहां पे टाइम बाउंड, हमारी विशेष है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए. हमें वहां पे टाइम का ध्यान रखना चाहिए. हमें लिखना चाहिए कि आई एम क्लियरिंग द IPS एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट, लाइक 2021 में किया है, या इन दिस मंथ माय एग्जाम आर हैपनिंग. मैंने मतलब मेरे 5 इंटरव्यू लाइंड अप है, तो आई विल से कि इन दिस कंपनी
जो दिल्ली लोकेशन के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उस इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है. So that is how we should use the SMART technique to affirm या visualize our thoughts. Those it should be specific, measurable, accurate, realistic, and time bound. So this is the summary of that how it take the time, how long it take. Yeah, hope I answered well. Great. Yes. Okay, so moving on to next question. It is, if law of attraction isn't working for someone, किसी के लिए अगर law of attraction काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसके क्या reasons हो सकते हैं? What can be the possible reasons? Yeah, so this is the highest asked question. मतलब सबसे ज्यादा लोग इसी questions को पूछते हैं. Law of attraction को हमने सुन लिया, समझ लिया कैसे काम करता है, लोगों के लिए काम कर रहा है, but it is not working for me. So there are few things जो हमें law of attraction को करते टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए. The very first one, it should always be used for the good intention. जैसे कि अभी somebody will say कि मतलब उसकी वाली जो जॉब है वो मुझे मिल जाए, मतलब उसको निकाल दे और फिर मुझे रख ले. So it will not work. So instead of saying that उसकी जॉब मुझे मिल जाए, we should say कि मुझे जॉब मिल गई है. So it can be in the same office, आप बोल सकते हो, दूसरे ऑफिस में बोल सकते हो, सेम पोस्ट बोल सकते हो, but we should not, our thought shouldn't harm to other person. क्योंकि जब हम रॉन्ग इंटेंशन के साथ में करने लग जाएंगे, तो वो रॉन्ग इंटेंशन की जो फ्रिक्वेंसी है वही हमारे साथ में आएगी. So when we will think bad about the other people, the same thing will happen to us. So हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले गुड इंटेंशन होना चाहिए. We should be clear. स्मार्ट टेक्निक से हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज चाहिए. और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है नहीं होने का, वो है कि लोग उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते. जैसे कि आज मैंने विजुअलाइज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, फिर नेक्स्ट में 15 दिन बाद कर रही हूँ, एंड देन आई विल से ओके इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क फॉर अस. तो हमें इसके लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए कि एवरी डे जितना हम करेंगे उसको उतना क्विकली हमको रिजल्ट डिलीवर करेगा. जितना विजुअलाइज करेंगे, सो वी कैन डू द विजुअलाइजेशन. मॉर्निंग में उठते हैं उस टाइम पे और रात को सोते हैं उस टाइम पे, वी कैन मैनिफेस्ट. सो the law of attraction के लिए उसको implement why it is not working, because you are not consistent. Or there could be another possible reason that people will say lots of people will throw lots of wishes, or they will write lots of things, they will ask too many things to the universe. Just for example, somebody will say कि अच्छा मुझे जॉब चाहिए, घर चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, और मुझे घूमने भी जाना है, all those things. So universe will get confused कि आप एक ही टाइम पे आप खुद भी उतनी चीजें विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. So if you will not be able to visualize, you are not putting the efforts. अभी कोई आदमी बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपको उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी. You should put the right efforts. क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट बैक ऑफ माइंड हमें हमेशा पता होगा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट व्हेन वी विल गेट द मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट हमें कब होगा, जब हम लोग उसके लिए राइट एफर्ट्स डाल रहे होंगे. तो किन लोगों के लिए काम नहीं करता, जो गलत इंटेंशन से करते हैं या वो क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स को. दे विल से ओके मुझे पैसे वाला बनना, आई वांट टू बी रिच. रिच कैन बी इन एनी फॉर्म. किसी आदमी के लिए रिच कैन बी उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो, ही कैन बी रिच. किसी के लिए $1 मिलियन अकाउंट में हो, दैट इज नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिच. तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन के लिए, गुड इंटेंशन रखना पड़ेगा, एंड दैट इज एंड देन दिस विल वर्क फॉर अस. वेरी ग्रेट रश्मि, आपने बहुत अच्छे से बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. So moving on to next topic for our webinar. So Rashmi, what is power of subconscious mind? Yeah, that is actually a very बहुत कम लोग जानते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में. और लेकिन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एंड दिस इज आल्सो मोर और लेस रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. So ये दोनों टॉपिक basically there are 2 different books. One is Law of Attraction, Secret, and the other one is Power of Subconscious Mind. But
these both, like we can, if we will use both the principles together, तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं. So next, moving to like next slide, Neha. So हमारे जो माइंड होते हैं, दो तरह के माइंड होते हैं हमारे पास में. वन इज कॉन्शियस माइंड, अदर वन इज सबकॉन्शियस माइंड. तो हमने बचपन से जैसे कि पेरेंट्स से सुना है कि हम अपने माइंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है वो यूज करते हैं. और मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने माइंड का सिर्फ लेस देन 1% यूज किया है, एंड वेयर दे आर टुडे. यदि हम अपने माइंड का सारा हिस्सा यदि यूज कर ले तो लाइक सब लोग बोलते हैं कि हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, बट सारा हिस्सा यूज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 1% कॉन्शियस माइंड एंड रेस्ट ऑल सबकॉन्शियस माइंड भी यदि काम करता है तो वी कैन अचीव एनीथिंग विच वी वांट. सो हियर इज द डेफिनेशन. कॉन्शियस माइंड, उसको हम ऑब्जेक्टिव माइंड भी बोलते हैं. तो कॉन्शियस माइंड होता है वो रीजन मांगता है. लाइक हमें सब चीजें कॉन्शियस माइंड में पता होती है कि क्या हमारे साथ में चल रहा है. तो हम जो भी अपने बेसिक डे टू डे लाइफ के अंदर डिसीजंस होते हैं वो हम कॉन्शियस माइंड से चूज करते हैं कि कौन सी जॉब लेनी है, क्या हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, या हमें किसी ने हमें कुछ सजेशन दिया, हमें लेना है या नहीं लेना है. तो हमारा कॉन्शियस माइंड उन सब के पीछे लॉजिक मांगता है. सो आवर कॉन्शियस माइंड इज अ लॉजिकल माइंड. और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉन्शियस माइंड. इट इज अ सब्जेक्टिव माइंड. एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड की हेल्प के बिना ही काम करता है. जब हम जागते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उतनी देर ही काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है. सबकॉन्शियस माइंड को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है, और ये इंडिपेंडेंट होता है कॉन्शियस माइंड से. इसको लॉजिक नहीं चाहिए होता है. सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज की तभी मुझे ये चीज मिलेगी, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सबकॉन्शियस माइंड को आप थॉट दो एंड इट इज लाइक कि आप एक सीड को उगा रहे हो और ये उसी तरीके से काम करने लग जाता है. सो आई विल जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम ब्रीथ करते हैं, हम अपना आंखों की पलकों को झपकाते हैं. सो दीज ऑल आर हैपनिंग सबकॉन्शियसली. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन्ड है जो इन सब चीजों को बिना सिग्नल दिए, बिना चीजें बताए ऑटोमेटिक ये काम कर लेता है. तो जैसे कि अभी हम बैठे हैं, गर्मी होते ही हमें इमीडिएट पता चल जाता है, सर्दी होते ही हमें पता चल जाता है. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमें इमीडिएट सिग्नल दे देता है. तो जैसे ही बारिश हो रही है तो हम लाइक बिना सोचे समझे हम सीधा घर में घुस जाते हैं. सो आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रेन्ड इनफ, तो वो हमें वो चीज तुरंत इम्प्लीमेंट करवा देता है. आई विल अगेन टेक अ एग्जांपल. जैसे ही हम मंदिर के सामने से जाते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हाँ मंदिर के सामने जाके धूप लगाना है. सो द सेम थिंग वी, तो जब कुछ टाइम के बाद में, कुछ सालों के बाद में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अडॉप्ट कर लेता है. सो इवन इफ यू आर इन डिफरेंट सिटी, डिफरेंट लोकेशन, और आपने कोई भगवान की फोटो देखी या फिर आप मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने कहीं से भी गुजरे हो, तो आप इमीडिएटली अपना हेड नोट कर देते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको किसी भी सिग्नल की, किसी भी लॉजिक की, कोई भी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती है. सो नाउ नेक्स्ट, नेहा, just move to the next slide. Yeah. So now we will understand what is the principle. कौन से principle पे ये काम करता है. तो as I already said कि we are the gardener of our subconscious mind. हम एक सीड को प्लांट करते हैं हमारे थॉट्स के, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसी चीज पे डे इन डे आउट काम करना स्टार्ट कर देता है. और हम जो चीज, मतलब हमने एक कहावत सुनी है कि हम जो बोएंगे वही मिलेगा. सो व्हाट एवर सीड वी विल प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमें वही चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी. क्योंकि कई बार हमें कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे डर, मतलब मुझे हाइट से डर लगता है. सो हमने क्या किया कि एक बार हाइट से हमें डर लगा, फिर हमने वो चीज लाइक नेक्स्ट टाइम वी नेवर थॉट अबाउट, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको फेस करें. हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही सिग्नल दे दिया और वही चीजें होती चली गई. तो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोवर्शियलिटी पे बिलीव नहीं करता है, ये आर्ग्यू ही नहीं करता है. ये बोलता है जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा. इट रिएक्ट अकॉर्डिंगली. एंड ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड इज अगेन लाइक नॉन बायस्ड, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव मिलेगा. It will never think कि हाँ, like it doesn't have the judgmental power. जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास में नहीं है, वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड के पास में भी ये नहीं है. ये बोलता है जो आप बोलोगे ना हम वही कर देंगे.
We will never think about कि क्या सही है और क्या गलत है. So it works. So subconscious mind is 1,000,000,000 times stronger than the conscious mind. तो subconscious mind की कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का बिलीव होता है, जैसे कि हम किसी को सर्दी जुकाम हुआ. सो नाउ लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक. तो जब किसी को जुकाम हो जाता था तो वो लोग बोलते थे कि अच्छा ठीक है 3 दिन तक मुझे जुकाम रहेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा. सो दे हैव लाइक हमने अपने आसपास के लोगों से सुन के या अपनी खुद की थॉट या अपनी खुद की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, हमने उसको सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड प्लांट कर दिया कि जब भी मुझे जुकाम होता है वो 3 दिन में तो ठीक हो जाता है. सो आई विल वेट फॉर 3 days एंड देन आई विल टेक एनी एक्शन. तब मेरा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल एक्शन लेगा, लेकिन सबकॉन्शियसली हम अपने आप से लाइक वी विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है. बट वही चीजें अब सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चेंज हो गई है जब कोरोना आ गया. सो अब मुझे जुकाम हुआ है तो कितने भी दिन रहेगा जब तक कि मैं उसी तरीके से मेरा बॉडी रिएक्ट करे. इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन से कॉन्शियस माइंड कब ज्यादा एक्टिव होता है, जैसे ही हम सो के उठते हैं तो उस टाइम पे जितना थॉट्स का फ्लो होता है वो कम होता है, जितनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है. तो यदि हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे जॉब, business, anything which we want to achieve in our life, so we can like एक छोटा सा अफर्मेशन आप अपने लिए कर लीजिए कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अ बिलियनियर. सो वो चीज आप अपने माइंड में दीजिए एंड दैट्स हाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग. आई विल अगेन टेक अ एग्जांपल कि साइंटिस्ट जब ही थॉट कि हाँ चलते जाते हैं तो बहुत देरी से तो बल्ब की जब उन्होंने खोज की तो उससे पहले कोई बल्ब था नहीं, तो उनको ये आइडियाज दिए किसने, तो उन्होंने सोचा मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये चेंज आ सके, आई वांट टू डू दिस. लेकिन अभी बल्ब आज हमको पता है कि बल्ब की, लेकिन जब सबसे पहले बनाया गया तो उन्हें पता नहीं था कि किस तरीके से. सोचो जैसे कि वो दिन में देखते थे कि सूरज की रोशनी दिन में मिल जाती है तो रात को कैसे रोशनी लाई जाए, तो उन्होंने ये थॉट प्रोसेस उनको आइडियाज देता था. तो जो भी नए आविष्कार हुए हैं, जो हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं, इट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड ने, जैसे कि आई वाज रीडिंग वन बुक जिसके अंदर लिखा था कि जब साइकिल की खोज हुई थी तो उनको पता चला था, मतलब अभी का जो साइकिल वर्जन है दैट इज वेरी एडवांस, बट उनको ये आइडिया आया था कि 2 गोल टायर हैं और उस तरीके से, और उसके बीच में उसको चलाने के लिए उसको पंपिंग करना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ इट विल वर्क. तो उस तरीके से साइकिल की खोज हुई, उसी तरीके से बल्ब, और जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उनको आइडिया यूनिवर्स से ही आता है. तो जो भी चीज हम, बहुत सारे लोग हैं, स्टार्टअप है, सबको जब आइडिया आ जाता है तो हम सब सोचते हैं हाँ इट वर्क, हाँ ये तो बहुत ही नॉर्मल आइडिया है, बट उसको सोचने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीड को प्लांट करना पड़ेगा. Yeah, so this is all about the subconscious mind, and this is basically more or less related to law of attraction. So by using these 2 methods, we can do anything, we can achieve anything in our life. Yeah, so in next slide, there are a few video links which we can share with you. Here there are few books. One is Magic and then Law of Attraction.
Power of Subconscious Mind, and there is one another. So these are the audio in Hindi and English. तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं. और इफ एनीबडी वांट्स सीक्रेट का इंग्लिश वर्जन, तो वो बुक आप अपनी ईमेल आईडी DITF की वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं. तो मैं आपको द सीक्रेट बुक का जो PDF है आई कैन शेयर विद यू. सो इफ तो हाँ, हमारे पास जो भी वीडियोस और यूट्यूब्स के लिंक हैं और जितने भी बुक्स के लिंक हैं वो सारे हम थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप आप सबको सेंड कर देंगे, बिकॉज चैट बॉक्स में वो रहेंगे नहीं काफी देर तक. तो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस नाउ. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स or you can unmute yourself and ask the questions. Okay, I've got a question, Neha. Yes, sir, please. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Subodh Dahima. I live in Mumbai, and just 2-3 days back, I joined DITF, and this is the first meeting which I'm attending. So thanks a lot for the invite. Okay, so we were talking about law of attraction, and it was a very nice session, and I learned a lot of new things. But sometimes when you are following your dream, when you are following your law of attraction, so and then a situation comes wherein you are taken aback, like, you know, I'm actually talking about Corona times now. A lot of people have lost their jobs, a lot of businesses have been shut down, and people are not getting jobs, and you know, situation is very. So in such circumstances, how would you follow your dream or whatever your law of, because you're back to the wall. मतलब आपकी अच्छी खासी नौकरी थी, आप अच्छा कमा रहे थे, अचानक आपको पिंक स्लिप मिल गया, एंड नाउ यू आर सिटिंग एट होम. और मैं चाह रहा था कि एक बड़ी गाड़ी खरीदूं, उसका कलर ऐसा हो, ऐसे डेकोरेट करूं, एंड विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आई गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई गो टू गोवा, आई गो टू दीस प्लेसेस. तो अभी लास्ट 6 months to 8 months I'm not able to get a job. I'm sitting at home. Very तो अभी वो जो मेरा ड्रीम बोलिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, वो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है. आई एम बैक टू द बेसिक्स. अभी तो सीधा सवाल हो गया कि दाल रोटी कैसे घर में मिले 2 टाइम, ताकि बिजली का बिल कैसे हर एक मंथ जो है दिया जाएगा और कैसे खर्चे पूरे होंगे. So I have forgotten about the car. I have forgotten about my dream house. So anyway, so my question is that, Ankita, in such troubling times, how do you sort of take your mind to a positivity thought and still pursue your dream or whatever? I would like to get some tips from you. Yes. Sorry, sir, are you asking question from me? Sorry, who was taking the session? Rashmi. I'm sorry. Yes, So this actually question is to everybody actually. Yes, I mean, it's not only addressed to Rashmi. If you have the answer, you can go ahead and. Yes, Subodh sir. So your go. question is very valid. तो Yeah. ये जो कोरोना का जो सिचुएशन है, that is like unpredictable, और वो it is not like कि it is happening like आपके साथ में. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, that is very valid and good question, and हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब भी मतलब there is a one saying कि जब हमारा टफ टाइम होता है, जब हमारा अच्छा टाइम होता है ना, तो हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करते हैं, बिकॉज वो ईजी होता है उस टाइम पे रखना.
पर जब हमारा टफ टाइम होता है तो हम लोग सोचना पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन हमारा इनर वॉइस जो है वो बोलता है कि अरे इतना करके तो देख लिया, अब कैसे काम चलेगा, नाउ इट इज नॉट हैपनिंग। सो दैट इज द राइट थिंग कि जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो एक जो बैड एविल होता है वो हमको हमेशा पुल डाउन करता है। तो इसके लिए सबसे मतलब आई एग्री विथ योर पॉइंट, दिस इज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, जॉब इज ऑन स्टेक, पर्सनल लाइफ इज ऑन स्टेक, ड्रीम का तो भूल ही जाते हैं हम ऐसे टाइम में। लेकिन लाइक हमेशा एक देयर इज अ सेइंग कि जब बुरा वक्त आता है उसके बाद में अच्छा वक्त जरूर आता है। सो दिस इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, this is a testing time, and believe me, there is one thing which like I can give you in written ki if something bad is happening, definitely there is something good, is like God is preparing something good for you. तो जब अभी स्ट्रगल है, हम लोग अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग गुड जो गॉड हमारे लिए लिख रहा है। कि हम एक चीज हम बोलते हैं कि आज जॉब नहीं है, टफ टाइम है, फैमिली के बारे में जो चीजें सोच रहे हैं वो भी होना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि दाल रोटी भी मुश्किल चल रहा है। सो हर किसी इंसान के, आप किसी भी आदमी की जो हिस्ट्री देखेंगे ना, तो आप उसमें पाएंगे कि हर किसी ने बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो उनकी स्ट्रगल के बाद आते हैं। सो माइट बी दिस इज अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस जो चैलेंजिंग है, और ये हमारा कर्व टाइम है जहां से अभी डाउन फ्लो चल रहा है, एंड वी विल अगेन मूव, वी विल हिट अगेन। तो मतलब इसके लिए लाइक देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आई कैन से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाउ इट इज वर्किंग फॉर यू, कि आप हमारी इतने बड़े DITF की फैमिली से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर यू, क्योंकि इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो डेफिनेटली देयर इज वन और अनदर पर्सन हु विल लाइक उनकी हेल्प हमको मिल ही जाएगी। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, हाउ वी कैन कीप काम अवरसेल्फ, क्योंकि दूसरों से पूछना वो सब चीजें हम कर लेंगे, लेकिन जब तक हम इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा, तो वो हमको हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन से देगा, और द सेम थिंग कीप फ्लोइंग। तो ऑल्दो आई एग्री इट इज टफ, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, यू स्टार्ट डूइंग अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। यू जस्ट से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट God has given me a life. I am alive. I am happy, healthy, and I have a job today. I am feeding my family today. And the same thought process you give in the night. I know it is difficult, but just practice for some time, and definitely we all are here. So एक दूसरे की help से this time will pass on, and start doing a meditation for just 5 minutes. So meditation is not about कि हमें क्या सोचना है, क्या महसूस करना है. Meditation is about stopping the thoughts in the mind. तो आप सुबह उठते हैं, उस टाइम पे आप जस्ट बैठ जाइए, कुछ भी नहीं सोचिए, और यदि थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, जा रहे हैं तो जाने दीजिए। जस्ट बी इन दैट पोज फॉर 5 मिनट ओनली, जब भी आपको टाइम मिले, एंड सी दिस विल वर्क, एंड जस्ट ट्रस्ट, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। उस मतलब जो विजुअलाइज जो टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यू कैन यूज एनी टेक्निक्स, जस्ट हैव अ फेथ and things will happen for you. And just believe me one thing, that you are going to get something very big. God is writing something very big for you. That is why वो आपको टेस्ट कर रहा है. God is testing us कि whether we are capable of taking that much bigger success in our life or not. तो वो हमें अभी नेगेटिव फेस दिखा रहा है, ताकि हम पॉजिटिव के लिए अभी तैयार हो जाए. Thank you very much. And Thank you so much. I just want to give you a little bit of my background. See, basically, I belong to Rajasthan. मेरा जन्म वहीं पे हुआ था, फिर हम लोग कलकत्ता मूव किए, and then after my education, then we moved to Bombay. तो उसके बाद में right now I'm a corporate trainer, and I conduct training sessions. So it can be selling skills, or it can be soft skills, it can be behavioral topic. आप जो टॉपिक पे आज जिसने आपने सेशन लिया, मैंने भी सेशन लिया हुआ है, एंड so I'll tell you my experience. Every morning I get up, being a trainer myself, so I give positive thoughts to my mind. ठीक है, वो positive thoughts चलता है लंच तक, 4 बजे तक. I'm able to work on those positive thoughts, and I keep applying here and there. I keep talking to people. I'm on LinkedIn, और LinkedIn में देवेश जी से मेरी मुलाकात हुई, और फिर उनसे हमने व्हाट्सएप पे चैट किया. उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना प्रोफाइल भेजो मुझे,
तो मैंने भेज दिया and so but what happens is but some days you don't find success, so by the evening you're totally depressed. अब एक थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, और फिर वो सोचता है कि यार ये ऐसा डिप्रेशन कितना दिन चलेगा। आई मीन अभी जैसे कोरोना का फर्स्ट वेव आया, अभी सेकंड वेव शुरू हो गया, पीपल आर सेइंग अभी थर्ड वेव भी आने वाला है, फोर्थ वेव भी आएगा। So then that depression sets in. सुबोध जी हाँ जी बोलिए जी। मेरा नाम कृष्णा है, मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। अच्छा बॉम्बे, ये जी मेरा नाम कृष्णा है। मैं एक रियल टाइम केस स्टडी शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलो यार। It is just about me. Okay. I lost, or you can say I have resigned from my job in June 2019 because of some pressure created from my manager, and I actually took it on me, like it is my fault or something like that. Okay, you will not believe, it has taken a very good toll on my health. Okay, I am actually a very livelihood, or you can say a living kind of a person. I make people laugh. I solve problems. I am reason for everybody of happiness. Okay, and you will not believe, I have suffered from clinical depression. Oh, you will not believe that I have had a thought where I was there are thoughts of self-harming. It took 6 months to me to recover from that. I changed 4 to 5 doctors. At the end, I went to Jaipur. There was one doctor called Mr. Vikas Thanvi. He treated me. And you will not believe that the person who was so lively at some point in time, 6 months down the line, a person is not able to speak a word. Okay. So this is a real-time case study I'm talking about. I completely recovered in the month of December, and with God's grace, with everyone's prayers comes along, I am actually completely fine right now. I'm on my you can say I'm on my legs, or I am on my own. I'm not working anywhere completely. From December, from January onwards, I have started, like I completed 6+ years in IT, working with startups and established organizations. I made 18 services which I can give to my clients. Okay, I started working from January. This is the month of April that we are going on. I have done a business of 50,000 rupees till now, and you will not believe, Devesh ji has shared your profile with me. Okay, and I was connected to few business coaches. I was connected to few people who hire for corporate trainers and everyone. Okay, and mark my words, I have suggested your profile to 3 of my connects. Okay. There might are chances someone will definitely call you. He can be Mr. Karan Haji. He definitely recruits people for corporate training and everyone. So he may recruit you, or he may call you for that. And there are also few players with whom I'm in talks to help you out in a good amount of time. Thank you very much, Krishna. Thank you. I will suggest you during this period of time, or the period that you are serving right now. So as you are saying कि 4 बजे के बाद में मुझे depression लगने लगता है. So don't you feel that? आप जाके नीचे walk कीजिए. You will not believe, I have tried each and everything which a depression can resolve. Okay. So आप नीचे जाके walk कीजिए, nature के साथ रहिए, and start believing in yourself. Start sharpening your skills, definitely. And work on yourself. The time that you are getting is a very golden time. See, even I'm 27 years old. I have took a risk in my life where my sister's wedding is there. My father's income is also not that good right now, but still I have taken a risk where I'm starting my own business. I'm getting success. So the kind of Rashmi was saying that, yeah, it's good. Once you start believing on yourself, then it will become a greater opportunity where you can enhance yourself.
Thank you, we can thank definitely you. connect offline for this. And sorry, Rashmi, for taking our time, but I thought like sharing a real-time case study would definitely help Subodh sir to feel that Yeah, something definitely. that will coming is good, and you should just have to believe on that. Okay. That's a Thank- great Thank you so much. outcome of the Thank you, session. Krishna. Well said. Well said. Krishna, thank you very much. And yeah, okay. Mr. Yeah. Subodh and Krishna, I'm really sorry. We have a few more questions to go. If you have any Definitely. doubts, you can email Rashmi, and Krishna, if you have any doubts, you can email as well. So thank you so much, Krishna, for giving this opportunity. Thank you very much. Feel the Thank you reach very from Mumbai. Yes, sir. Rashmi, thank you very much for a nice session. And also we have met two personalities, Krishna ji and Subodh ji Daima. I heard them also. Now I have a query with your session, Rashmi, that can we use the word virtual mind instead of using the subconscious mind? My question number one is this. Let me complete my second question. And what is the best time when we can access our subconscious mind, or you can say the virtual mind? Yeah. These are the two questions I have. Understood your question, and the question is quite different from other questions. So, Sushil ji, I would like to first answer your very first question, virtual mind. So, virtual mind is like, I would say like, it is up to us कि कौन सा language या कौन सा definition आप अपने subconscious mind को देना चाहते हैं. But virtual mind जो है, वो एक बहुत ही limited definition है. And subconscious mind के पास में उतना ज़्यादा power है कि it can do beyond virtual things. It can do beyond reality. तो आई वुड से कि सबकॉन्शियस माइंड लाइक हम किसी भी नाम से उसको बोले, जैसा कि पहले ही बताया कि इट इज इम्पर्सनल या मतलब अनबायस्ड, तो हम किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड द बेस्ट टाइम टू डू द मैनिफेस्टेशन इज अर्ली मॉर्निंग, जब जैसे ही हम उठते हैं विदाउट चेकिंग द फोन. The very first thing, सबसे पहले हम जो फोन देखते हैं, that is the most negative things which we are giving to, which we are actually feeding to our mind. हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि अच्छा कौन मरा, किसका कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसकी जॉब गई है, कोरोना में कितना % हाइक हुआ है. So these all things we are actually reading and we are manifesting the same thing and we are sending the same message to the universe. So सबसे पहले जैसे ही हम उठते हैं तो एटलीस्ट हमें 1 घंटे तक अपने फोन को नहीं छूना चाहिए. एंड दैट वो 1 घंटे के अंदर हम जैसे कि हमें उठ के बैठने की जरूरत नहीं है. हम उठते हैं उसी टाइम पे हम अपने, जैसे ही हमारी कहते हैं कि हम जाग जाते हैं, हमें इमीडिएट मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देना चाहिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, टुडेज मॉर्निंग इज वेरी गुड. जैसे ही पक्षी चहकने लगते हैं या सूरज की किरणें हमारे मतलब बेड पे आती है, तो वी कैन से कि टुडे दिस डे इज वेरी पावरफुल, आई कैन अचीव माई ड्रीम्स, आई एम to have this day. So that's how we can start. और the next thing, जैसे ही हम सोने लगते हैं, तो जब हम थोड़े से सबकॉन्शियस वे में होते हैं कि हम नींद में जा रहे होते हैं, so and do the manifestation सोने से पहले और मॉर्निंग, ये बेस्ट टाइम है. और बाकी हम किसी भी टाइम पे अपने थॉट प्रोसेस को 5 मिनट का मेडिटेशन करके हमारे थॉट्स को का जो फ्लो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. एंड देन वी कैन अगेन यूज दिस टेक्निक. Excellent. Thank you very much. Thank you सुशील जी for asking this question. और before anyone else, हमारे पास chat box में 2 questions और हैं. The first question is from Mr. Vinay Sharma. Destiny और law of attraction में क्या difference है? तो रश्मि, काफी लोग बिलीव करते हैं कि हमारी डेस्टिनी यही है, शायद हमारे किस्मत में पैसा नहीं है, या फिर और एक तरफ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखते हैं कि अगर आप इतना सोचोगे तो आप उस लेवल तक जा सकते हो. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सो बेसिकली विनय जी, आपने सुना होगा कि इंसान अपनी किस्मत को खुद ही लिखता है. सो आई विल अगेन I'm not sure whether this is the right platform, but I'll just give an example कि जब मैंने अपना सीए का पढ़ाई शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे, जैसे कि हम लोगों को सबको बेसिकली शौक होता है अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाने का या अपनी कुंडली दिखाने का. सो देयर वाज अ पर्सन लाइक आई मेट, और सबने कहा बहुत ज्ञानी ध्यानी है पंडित जी. तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा सीए क्लियर होगा या नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा है कि तुम सीए क्लियर कर पाओगी. एंड दैट हिट मी अ लॉट कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आई विल क्रिएट माई ओन डेस्टिनी. तो आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड उन्होंने कहा कि तुम्हारा हो भी जाएगा तो तुमको 4-5 अटेम्प्ट तो आराम से लग जाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल ओनली बी एबल टू डू
और जब तक तुम करोगी तब तक तुम्हारी जॉब मिलने के या कोई अच्छी पोजीशन का तो संयोग ही नहीं बनता है कुंडली में. But I actually kept it aside because I am a follower of law of attraction. I started working towards that, and हर जगह पे कि मैंने 2013 में अपना एग्जाम लिखा था, तो I started doing कि CA Rashmi Daima in May 2013. I am a CA Rashmi Daima in May 2013 attempt, and that actually happens, and that was in first attempt. So that is how destiny is there. But destiny में हो सकता है ये लिखा हो कि जब आप efforts करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा. भगवान हमारी डेस्टिनी में ये भी लिख सकता है, मतलब एक होता है कि इस इंसान की किस्मत में ये लिखा है, और एक हो सकता है कि इस इंसान की किस्मत में भगवान ने ये लिखा हो कि हम मेहनत करेंगे तो हम बन जाएंगे. सो दैट इज हाउ. तो भी नोबडी नोज, मतलब जो भी पंडित जी है या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट है या कोई भी लोग हैं, सो एवरीबडी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, मतलब जो साइंस है उसके थ्रू. सो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि हो सकता है या तो डेस्टिनी में लिखा हो कि मेहनत करो, और या फिर लाइक आई वुड से जो चीजें लाइक डेस्टिनी, मतलब गॉड ने हमारे लिए जो भी चीजें प्लान की है, तो हमें मतलब नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट मेहनत. तो हमें सबसे पहले हार्ड वर्क उसको देना ही पड़ेगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके हम एक पॉजिटिव पाथ को अचीव कर सकते हैं. एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. Like this is my personal experience. Anything can be. Destiny हमने किसी ने देखी नहीं. So the next question. Yes. So next question is this मैं मधुसूदन दादी जयपुर से. हाँ जी सर. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेश जी को, और सफल संचालन के लिए नेहा जी को, और आप सभी जो उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत. और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और जिस तरह से रश्मि जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो संवाद किया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहा. मैं सूक्ष्म रूप से, शॉर्ट रूप से, सारांश में ये बताना चाहूंगा कि एक तरह से ये गीता के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है. और मुझे खुशी इस बात की है कि सेशन में इनकी जितनी उम्र है उतना वर्किंग एक्सपीरियंस के व्यक्ति सेशन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने, रश्मि जी ने अपनी सरल लैंग्वेज से, सरल भाषा से इस टॉपिक को, गीता के सारांश को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया. इसके लिए मैं इस युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारी संस्कृति को, गीता को गहन रूप से दूसरे रूप में पढ़ा है, और उसे आज के युग में, आज के परिवेश में, आज के युवाओं के रूप में अनुकूलता के हिसाब से इसको आज प्रेजेंट किया, और जो पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया है, टू मच नाइस. मैं इसी तरह से सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह आगे बढ़ते हो तो हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है. और साथ ही साथ में देवेश जी को बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि युवा अपने विचार को आधुनिकता के रूप में देखते हुए रखे, और हम सबको अवगत कराएं, और हमारी संस्कृति से अछूते नहीं रहें. आपने जो बताया, रश्मि जी ने बहुत अच्छा बताया. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर. बहुत अच्छा कदम उठाया. हम लोग जो जुड़े हुए, हमारे को तो आज 30-35 साल वर्किंग करते हो गए, और हमारी जितनी काम करने की एज है उतना इन लोगों की एज है, और इस एज के अंदर ये अपने संस्कृति से, आध्यात्मिक से जुड़ के और इस तरह के विचार प्रकट करते हैं. और साथ ही साथ मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी बात रखी, वो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जिनका थॉट है पाश्चात्य संस्कृति के थॉट है, इंटरनेट पे और गूगल के ऊपर आधारित है, उसमें ये चीज उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, बहुत ही तारीफ के काबिल है. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मेरे बारे में शुरू में बताना चाहूंगा, अभी मैं राजस्थान में तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का तकनीकी सलाहकार हूँ राजस्थान सरकार में. मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह की, कोई भी तरह की सरकारी अथवा किसी भी तरह का कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे बताएं. और आप इस तरह के वेबिनार करते हैं, बहुत अच्छी बात है. और मैं तो ये चाहूंगा हर 15 दिन में या 10 दिन में. थैंक यू सो मच. हमारे पास कहना चाहूंगा, जो क्रिकेट का जो आप ये आयोजन कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, और मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान में करिए. राजस्थान में आपको पूर्ण रूप से सभी तरह की सुविधा जहां तक हो सकेगी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी. और जयपुर में और राजस्थान की पूरी युवा टीम आपके साथ में है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. रश्मि,
एक क्वेश्चन और है हमारे पास विच इज काफी लोग पॉजिटिव सोचते भी हैं, काफी लोग पॉजिटिव करते भी हैं, तो उस रिजल्ट नेगेटिव आने का क्या रीजन हो सकता है और क्या इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं? एक सेकेंड, इसके बाद मिस्टर राम दादीच ने हैंड रेज किया हुआ है, तो सर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके बाद ले सकते हैं, और दैट्स इट. रश्मि, यू कैन कंटिन्यू. Yeah, so Neha, I think we have already answered to your question कि क्या इसके limitations हैं and ये काम क्यों नहीं करते हैं. So उसका 2-3 reasons है कि one, एक टाइम में हम बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं, या फिर हम clear नहीं है कि हमें क्या चाहिए, और या फिर हम the main reason is we are not consistent in that. तो उसके लिए हमें स्मार्ट टेक्निक को यूज करना है, और जो टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको यूज करते हुए आगे. Okay, okay, okay. Neha, may I go next? Yes, Mr. Ram. Yeah. Thank you so much, Neha, and more for conducting this wonderful session. And Neha, Rashmi, this session is really quite insightful. I have read the book The Secret, and that's why I joined. I have been connected with DITF group for almost 6 and 7 months. Devish sir and Arushi has contacted me as a speaker around 7 to 8 months ago. And after that, I have attended few of the webinars as a audience, and few I couldn't because of professional commitments. And when I saw this law of attraction, as I read the book The Secret, so that's why I inclined I will join this session. Brief introduction about me is we share the same profession. I'm also a chartered accountant. Apart from CA, I have done FRM, and I'm a CFA level 3 candidate. And previously, I worked with Larsen & Toubro in treasury management, and currently I'm a founding team member of a startup, and I head operation as well as investment advisory vertical there. And my question is like very basic question kind of. So my question is, I'm a CFA level 3 candidate. Within 1 or 2 months, I am having my CFA level 3 exam. Now I want to apply this law of attraction to get the exam that I want to visualize it with this time. Apart from CA and CFA, apart from CA and FRM, I'll be CFA also. I want to visualize this thing. But the point is, already twice my exam got deferred. Now I'm not even sure that exam will happen or not. So how to visualize about that thing that I'll clear the exam when I'm not sure that exam will happen or not? Yes, Ram. So that uncertainty, जब हमने सुबोध सर का question लिया था, that time that this uncertainty is not for the individual, this is for the entire group, like entire universe. तो अभी इसको हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं. Like I understand there is no time boundation for this, but we should visualize कि this has happened in 2021. And if all the people are healthy, wealthy, word is settled, I'm settled in my life, my exam is cleared, and I have got job, like whatever is dream jobs, which you will get after clearing your CFA exam. So that's how you start visualizing this thing, and give a timeline 2021. Like, you know that your exam date is, like, for example, if it is just next to the corner, for example, May 2021. Like, it's May 2021. Yeah. So then you can say, okay, in 2021, it is happening. My exam has happened. I appeared in the exam and I cleared it. Everything like is going well. And right now I'm doing a job with this qualification. So that's how you can do. And you can test your thoughts accordingly. Thank you. Thank you, Rashmi. It was really insightful. Thank you, Ram. Thank you, everyone. So, Neha, over to you. I think we understand there are lots of questions from the audience. So if there is any question, you can write it in the chat box, or you can send email to DITF email ID. We can take it from there, and we will definitely. Hi. Can I speak? Yeah, Neha, over to you. Yeah, my name is Shweta Kapoor. I'm one of the students of Mr. Devesh Badis and a very close family friend. I just had one question. I've been doing law of attraction from a longer period of time. I just wanted to know, when do you feel your manifestation is coming very nearby? What are the signs? Shweta, like, I understand your question, but I am getting constant messages
from our IT team that we need to wrap up the session. So can I connect you separately? Like you can connect me. Neha or DITF team I will can share the my number. number with you. Yeah. Mr. Sorry, Kiran, Neha, we need to do. yes, sure. Mr. Kiran, please share mobile number, and he has already shared a Gmail I will email share. ID, which is ditfindia@gmail.com. So if anyone has any questions, please send an email over there. And thank you so much, everyone, audience, for making this session lively and very interactive. It was really. Hello, can I lovely. add something? I am Rajesh Sharma. Uncle, I'm really sorry, but we are actually wrapping up. It has Okay, taken around 2 hours. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you so much. Also, moving on to vote of thanks, I did like Miss Ankita Kudal to take over now. Ankita? Can you hear me? Yes. Yeah. Khamagani and good evening each and everyone presented here. This is Ankita Kudal. I am CA finance student and I am from city of Lakes, Udaipur, Rajasthan. वैसे तो सारी बातें रश्मि दी ने बताई दी है, लेकिन हमारे कन्वर्सेशन के दौरान कुछ बातें हुई उस पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ. अकॉर्डिंग टू मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट्स दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा कि अभी सुबोध अंकल ने कहा था कि ऐसी पैंडेमिक में हम कैसे ध्यान रखेंगे कि हम इन चीजों से बाहर निकले या हम हमारे ड्रीम्स पर फोकस करें. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, पैंडेमिक से हमें काफी शिकायतें हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन जो की है वो मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड. हमारे पास जो कुछ भी अभी है हमें उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोरोना पैंडेमिक को देख लो, हमें लगता है इसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है, लेकिन अगर हम यूं देखें कि हम हर रोज सुबह हम एक नई सुबह देख पा रहे हैं, या हम भूखे नहीं सो रहे हैं, या हमें हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है, या फिर हम हमारे पैशन को जान पाए हैं. Around 27,000 people in India die every day. Around 19 crore people hungry every day. कम से कम हम उन सारे लोगों से ऊपर सिचुएशन में हम जी रहे हैं. One more thing, do what you love. Do what brings you joy. For example, I love writing, so I keep writing. I love nature, so I spend some time with nature. So कहीं law of attraction हमारी लाइफ में काम करता है, लेकिन तब जब हम लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल जब सर ने जब कहा था कि ये बात गीता से बिलोंग करती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ. I think law of attraction and law of karma both are complement to each other. ये एक दूसरे को complement करते हैं. Both are aligned to each other. There is no attraction without action. कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी सोच के साथ साथ हमारा कर्म बहुत जरूरी है. कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. तो मुझे इन सब बातों पे अपनी बात रखनी थी, बाकी तो रश्मि दी ने बता ही दिया है. In last, I want to say thank you to DITF and respected Devesh Dadi sir who gave me this opportunity to present my view. I want to thank you to our panelist speaker CA Rashmi Daima, moderator Neha Dadi, introducer Sharma, who beautifully shared and present their paper, and presentation was such a captive and catchy presentation. And I want to thank you all those who implicitly and explicitly became a part of this event. थैंक यू सो मच. और लास्ट में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी. शुक्रगुजार हूँ खुदा की जो आपसे मिलना मुकम्मल हुआ. ये इस सभा का अंत नहीं, अभी तो बस आगाज हुआ. See you on 25th April. एंड आप में से जिस किसी को भी कविताएं लिखने का या आर्टिकल लिखने का शौक हो, आप प्लीज हमें ditfindia@gmail.com पे सेंड कीजिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you, Have Neha. a good day. Chalo. Goodbye.